Assalamu alaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with the chapter 6 exercise 6a functions and linear graphs of book DU1. So students, directly I'm going to start towards the question number 5 in which we have this order pair and we have to put out this order pair in the graph paper, and after putting the paper we have to see what geometrical shape it will be. So now move towards the graph paper. Okay, now before putting the point, this order pairs in which the first one is for the value of x. This is the order pair. What is the order pair in which we have the first pair is the value of x and the second is the value of y. Okay, so these are the order pairs to which we have to put out the values on the graph paper or Cartesian plan. So the first is the value of x and the second is the value of y. So from where y, so from where we can see how range we have for the variable x. We have the range of x is 6 minus 6. That's mean in the negative sign हमारे पास values होंगे minus 6, in the positive sides we have 6, and in the y we have minus 4 to 4. That's mean this is a range from in the y-axis. Now first of all we have to draw the Cartesian plan. ठीक है, this vertically line is called the y coordinate, y ordinate and y axis, and the horizontal one ठीक है, and this horizontal line is called the x axis, fck and x coordinate. ठीक है, this is the plan that is called the Cartesian plan, which have the two lines. One is the horizontal, this is called the x axis. Here we have the negative values of x, here we have the positive values of the x. ठीक है, यहाँ पे जो horizontal line है उसमें x की आपके पास जो राइट साइड होती है पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव वैल्यूज हैं. देन ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड द वाई ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस. ठीक है, टॉप पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज टॉप में होती है, और हमारे पास बॉटम में जो होती है वो वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती है. नेगेटिव वैल्यूज को हम ऐसे बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ हमने रेंज पुट अप करनी है. अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर को फिर से मूव करें तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यूज इन सब ऑर्डर की हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं एक्स की. तो एक्स की रेंज हमारे पास कौन सी है, -6 to 6. दैट्स मीन के जो मिड वाला पॉइंट होता है ये हमारे पास ओरिजिन होता है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, 0. ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास ओरिजिन होता है. इसके लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती है. अब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 6 तक है. एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के, हमें यहाँ पे कुछ भी स्केल नहीं दिया हुआ, दे जस्ट गिव अस द ऑर्डर पेयर, वी हैव टू पुट आउट दिस ऑर्डर पेयर्स इन द ग्राफ. So now it is your own choice that you can take the difference of 1 centimeter, 2 centimeter, whatever. So okay, now we have to put out the values of the x, the positive rate. Here I have the scale in which we have to measure the it is your own choice, you can take the distance of 1 centimeter, 2 centimeter. So because the scale is not given, so it depends in your own choice. तो हम कर लेते हैं 1 centimeter का distance लेते हैं. Now you have to count the box. In 1 centimeter we have 1 2 3 4 number of boxes are there in our 1 centimeter. So I just take the scale, x-axis scale, x-axis 1 centimeter. ठीक है, सेम इज दैट y-axis 1 centimeter. मैं x और y दोनों एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रही. सो मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे पॉइंट्स को. ओके जी, 1 2 3 4 1 1 2 3 4. ठीक है, मैंने एक मेजरमेंट ले ली 1 सेंटीमीटर की. अब आफ्टर 4 बॉक्सेज यानी कि 1 सेंटीमीटर मैं इसकी मार्क कर देती हूँ 6 तक. इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव करके मैं फिर से आती हूँ आपके पास. ओके जी, आप देख सकते हैं पेपर में मैंने एक्स और वाई की रीडिंग ले ली. अब वाई की मेरे पास रीडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ 4 है. ठीक है, कैसे कि मेरे पास वाई की यहाँ से रीडिंग देख लें आप, आपके पास वाई की क्या रेंज थी, 4 4 -4 दैट्स मीन -4 to 4 आपके पास थी. और एक्स की क्या थी, 6 -6 6 सो -6 to 6. 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, स्केल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और उससे हमने पॉइंट्स को पुट कर लिया. ये जो हमारे पास ओरिजिन होता है इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, 0. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखें, आपके पास जो
एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्स की रेंज है इसमें एक्स की तो वैल्यूज हैं लेकिन वाई ओवरऑल यहाँ पे हर जगह वाई यहाँ पे 0 है। एक्स की लाइन में यानी कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है एफ सी का है, जो आपके पास एक्स ऑर्डिनेट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यूज थ्रू आउट क्या होती हैं 0, और वाई के स्केल में आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होंगी 0। ठीक है, देखो जो वाई का स्केल है उसमें वाई की वैल्यूज होती हैं और एक्स की सारी यहाँ पे 0 होती हैं। जो एक्स का स्केल है यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज होती हैं और वाई की 0 होती हैं। और ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वो मेन पॉइंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। ठीक है, इसमें ये आइडेंटिफिकेशन की मैं एक और वीडियोस अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं आपको पॉइंट बताऊंगी कि एक्स और वाई की किस तरह से वैल्यूज आप देख लें कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर पेयर आ जिसमें 0 4 हो तो आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसकी पोजीशन। ओके जी, हम ऑर्डर पेयर में पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 6 और 4, प्रोबेबली यस ये 6 और 4 है, तो हमारे पास देखें 6 पहले 6 है यानी कि एक्स एक्सिस का 6 पॉइंट देखें ये, और 4 किसका, वाई एक्सिस का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 4, इनका कॉमन पॉइंट हमने मार्क कर देना है। चाहे तो आपका जब ग्राफ बढ़ा हो जाए तो स्केल से मार्क कर लें जी, ये पॉइंट हो गया। देन -6 एंड 4, -6 का मतलब है फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, सेकंड वाई की है, यानी कि एक्स का -6 देखें, ये एक्स का स्केल है, एक्स के स्केल में -6 हमारे पास किधर है, ये वाला पॉइंट। मैंने वीडियो जूम कर ली ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर नजर आए। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट मेरे पास था -6 एंड 4, तो एक्स के स्केल में -6 ये और 4, अच्छा -6 और 4, अब इनका हमने कॉमन पॉइंट करना है। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, यूं आपस में क्रॉस कर देंगे, नहीं, आपने -6 और 4 को लाइंस को एक्सटेंड करना है और इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वहां पे आप मार्क करोगे। चाहो तो पेंसिल से लाइट सी लाइन से डालो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है -6 एंड -4, -6 एंड -4। जब मैं -6 एंड -4 कह रही हूँ तो इसका मतलब x है -6, y है -4, सो -6 ये हो गया और -4 ये, तो इनका कॉमन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करें, इंटरसेक्ट करें, वहाँ पे मार्क हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 6 एंड -4, 6 एंड -4, फर्स्ट 6 एक्स का, y का हो गया -4। ठीक है, सो देखें 6 एक्स एक्सिस का ये वाला है ना एक्स का स्केल, और y आपके पास है -4, तो इनका कॉमन पॉइंट ले लें। ठीक है, मैंने तो इसी तरह रैंडम किया है स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स इस तरह से स्केल रख के देख लेते हैं, 6 का ये पॉइंट है, यहाँ पे डॉट लगाया, 4 का कौन सा पॉइंट है, इस तरह से करके वो कर लेते हैं तब सही। अच्छा जी, अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और देखना है कि कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास बनती है। तो ये तो हमारे पास बन रहा है रेक्टेंगल। ओके जी, अब आपके पास कौन सी शेप है, शेप यहाँ पे मेंशन कर दे क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने शेप मेंशन करना है। सो यू हैव राइट डाउन द शेप दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ हम इसी का पार्ट कर लेते हैं, एक सारे पार्ट्स नहीं करते क्योंकि आपने इसी तरह से पॉइंट को पार्ट्स को प्लॉट करना है। हम ऐसे करते हैं, पार्ट ई कर लेते हैं, हम पार्ट ई करते हैं कि उसको किस तरह सोल्व करना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ इंशाल्लाह, आई होप सो दैट यू विल डू इट। हम बना लेते हैं पॉइंट, अगेन मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रही हूँ। ठीक है, y एक्सिस की लाइन लगी एंड देन वी हैव टू पुट आउट द लाइन ऑफ द x एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑर्डर पेयर को सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। ओके जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ई का ऑर्डर पेयर लिख लिया सारा। ठीक है, आपके पास कौन सी पेयर है, देखिए आपने सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करनी होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आपको कैसे पता चल जाता है कि हमने कितनी रेंज लिखनी है, तो आप सबसे पहले अपने ऑर्डर पेयर को देखिए, बाद में आप अपने ग्राफ पेपर में पॉइंट पुट कीजिएगा। आपके पास x की मैक्सिमम रेंज पॉजिटिव तरफ आ रही हो 5 और आपने उठा के 14 तक कर दी हो, तो ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रेंज को देखें, कुछ नंबर्स ऊपर लिख देते हैं वेल एंड गुड, पूरे भी लिख दें तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू सेव योर टाइम। ठीक है, सो देखो पहली जो आपके पास
ऑर्डर पेयर में सब x की वैल्यूज हैं। जिसमें ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू हमारे पास x की होती है, कोमा के बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, y की होती है। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास है 5 -1 -1 5। यहाँ से सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू ली। नेगेटिव में कौन सी आपके पास वैल्यू, -1, तो x की रेंज है आपके पास, स्केल आप साथ ही लिख लो, आपके पास है -1 to, अब देखिए सबसे ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या है, 5, -1 to 5। ठीक हो गया। अब y की रेंज देखें आप, ये y की आपके पास 2 3 -3 -2, दैट्स मीन के -2 to -3 to 3, -3 to 3। क्योंकि आपके पास -2 मत लिखिएगा, क्योंकि माइनस में जो टर्म हमारे पास जितनी ग्रेटर होती है उतनी स्मॉलर बन जाती है। जैसे आप नंबर लाइन को ड्रॉ करें, सपोज -1 -2 -3, तो देखिए आपके पास जितना हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, -3, तो -3 से आपने लेना है 3 तक, बीच में ऑलरेडी आपके पास 2 सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रेंज आके, स्केल आके जो हमने ले लिया, अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपने ग्राफ में। अच्छा, ग्राफ को यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है। मैं ग्राफ में कब से वीडियो बनाना चाहती, लेकिन इसी वजह से था कि पता नहीं मोबाइल की स्क्रीन पे से ये बॉक्सेस दिख रहे हैं कि नहीं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एक्स की नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज। सही हो गया। अब एक्स की रेंज है हमारे पास -1 to 5। सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। जो हमने काउंट किया था, हमारे पास होते हैं 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 हो गया, 2 1 2 3 4, दैट इज 3 1 2 3 4 ओके जी, डन। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं पुट। ये हमारे पास है ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू 0 होती है। नाउ वी हैव टू पुट आउट द वैल्यूज इन द ऑर्डर्ड पेयर। नाउ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 5 and 2। ओके ना जी, 5 and 2। अब हम इसको पुट करते हैं इधर। मैं स्क्रीन को जैसा जूम कर लेती हूँ ताकि आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाए पुट करते हुए। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट जो मेरे पास था 5 and 2। देखो 5 है, फर्स्ट 5 है, यानी कि x की स्केल की वैल्यू 5 और y की स्केल की 2। अब यहाँ पे ऐसे इन दोनों को क्रॉस मत कर दीजिएगा। x का पॉइंट 5 था, इसको एक्सटेंड करते जाए यहाँ तक कि वो वहां तक एक्सटेंड हो जाए जहाँ पे आपके x का पॉइंट 2 मिलता है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, मैंने डार्क से लाइन कर दिया, मत कीजिएगा, पेंसिल कर लेना कुछ भी। देन आपके पास है -1 and 3। x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गया ये वाला। इसके बाद हमारे पास है -1 एंड -3, -1 x का एंड -3 y का। ठीक है, तो यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी कि लाइंस आपस में कंबाइन करिए, वहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देन हमारे पास है 5 एंड -2, 5 x का 5 y का -2, इसको एक्सटेंड करें और ये बन गया ये पॉइंट हमारे पास। अब हम देखते हैं कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। आपके पास ये दो पॉइंट्स है, ये बीच वाला पॉइंट तो मैंने एक्स का बताया था, इसको ना आइडेंटिफाई कर देना। ये पॉइंट है हमारे पास, इसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ से ये दो पॉइंट ज्वाइन हो गए। देन वी हैव दिस लाइन, ऐसे इसको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम। ओके जी, अब देखें हमारे पास कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बनी, दैट इज ट्रेपेजियम। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व आउट और rest of the parts, and you will try it. I hope so that you understand the question, and still if you have any queries so you can ask. And the concept that is related to the OKG order pair Cartesian plan whatever, so I upload the video regarding to this point. So take care yourself. Allah Hafiz.